Focused? Okay. So now class, we need to start with the question today, and after attending discussion, we'll move on to the appendix of this chapter, which is chapter number 6, and it's, I guess, chapter number 7 in your slides. So it's about restructuring the segmented income statement. Millet Corporation is a wholesaler. Wait. Move it a little bit. Okay, so now, Millet Corporation is a wholesale distributor of office products. It purchases office products from manufacturers and distributes them in the West, Central, and East regions. So now we have 3 regions: West, Central, East. Each of these regions is about the same size, and each has its own manager and sales staff. Okay, the company has been experiencing losses for many months. In an effort to improve performance, management has requested that the monthly income statement be segmented by sales region. The company's first effort at preparing a segmented income statement for May is given below. So this is an income statement segment-wise for 3 segments: West, Central, and East for the month of May. May के लिए आपको segmented income statement is given. Sales 450,000, 800,000, and 750,000. In case you want to, I haven't gone through the question yet. ठीक है, अभी तक मैं नहीं गया, questions देखे नहीं हैं, पूरा नहीं देखा कि what is the requirement. लेकिन इस तरह करते हैं कि on the safe side, let's make a total column as well, ताकि अगर उसमें कोई चीजें हमें change करनी हो, or if they have done something wrong over here, so then we can make a correct one. Okay. So let's make a total column over here. इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे क्योंकि we will need the text. इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं यहाँ, ठीक है? Let's make it like this. So let's make a total column over here. Total. So total sales are 450 plus 8 plus 750. 350, 2 million. 2 million. Now, regional expenses, traceable. So these are your expenses, traceable expenses, cost of goods sold, advertising, salaries, utilities, depreciation, shipping expense. So this is total regional expenses. So your total regional expenses are 418,500, 640,000, and 795,000. It includes your CGS, it includes advertising, salaries, utilities, depreciation, and shipping expense. अभी तक से मुझे नहीं बताया कि क्या है, लेकिन जरा मुझे थोड़ा सा बताएं कि remind करें मुझे कि when you are making a segmented income statement, so which format do we follow? Contribution margin. Does this look like contribution margin? नहीं ना, नहीं लग रहा, मुझे भी नहीं लग रहा, ठीक है, देखते हैं आगे. So these are your total regional expenses. Regional income or loss before corporate expenses. Now this is your regional income, 31,500 for Western region. For Central region is 160,000, and for Eastern region is 45,000 negative, which means a loss. हमने इसमें किया क्या है? इन्होंने क्या किया है? 450 minus 418,500, so this gives you 31,500. For Central 800,000 minus 640 gives you 160,000. For East 750,000 minus 795 gives you 45,000. Clear so far? Clear? आगे जाते हैं. Corporate expenses. Now these are the corporate expenses. So try to imagine this organization. कि एक organization है और वो different regions में काम कर रही है और मैंने सबको अलग-अलग segment कर दिया है. मेरे पास 3 regions हैं. Just think of it as provinces. 3 provinces हैं, 3 regions हैं, उसका अलग-अलग मैंने कर दिया है. और फिर मैं कहता हूँ कि कुछ expenses are corporate expenses. यानी कोई headquarter होगा जहाँ पे expenses incur हो रहे हैं. Advertising, journal. Now these all expenses were traceable. ये सारे traceable. ठीक है? So when we say traceable, the first thing which comes to our mind is traceable fixed cost. पहले ये दिमाग में था ना, हमने ये पढ़ा हुआ ना, traceable fixed cost. So it's actually fixed cost. अब मुझे नहीं पता इसके अंदर फिक्स कितनी है और इसके अंदर वेरिएबल कितनी है, वो अभी जब देखेंगे तो पता चलेगा. लेकिन ये ट्रेसेबल है, इसमें फिक्स है, इसमें वेरिएबल भी होगी, एंड कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट भी कि आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम सेल्स, देन व्हाट डू आई नीड टू डू? वेरिएबल, दिस वुड गिव मी कंट्रीब्यूशन मार्जिन, एंड देन आई नीड टू सबट्रैक्ट ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट और फिर सेगमेंट मार्जिन और फिर जो बाकी कॉमन फिक्स कॉस्ट है वो कहां से सबट्रैक्ट करूंगा? फ्रॉम टोटल, व्हिच इज एक्चुअली द ऑर्गेनाइजेशंस टोटल ना, तो वो सेगमेंट से माइनस नहीं होगा. तो इसके बाद जो सबट्रैक्शन होगी फॉर कॉमन फिक्स कॉस्ट, दिस वुड बी फ्रॉम द टोटल, नॉट फ्रॉम सेगमेंट्स. और यहां पे टोटल क्या चीज है? कॉर्पोरेट, ठीक है.
तो ये कॉर्पोरेट चीजें जो है ये जानी चाहिए टोटल, नॉट टू सेगमेंट्स। ओके, ये भी हो गया। आगे चलते हैं। So total corporate expenses are 68,000. That means we have a loss of 36,500 for Western region. For Central region, it's 82,000. So we have a profit of 78,000. For Eastern region, it's 80,000. So we have a loss of 125,000. So that means overall, the company is incurring a loss. Net loss and profit. Net loss. Find out. Give me the figure. 125,000 plus 36,500. ये लॉसेस है तो इसको इकट्ठा कर देंगे और इसमें से जो प्रॉफिट्स है उसको हटा देंगे। हमें पता चलेगा ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल क्या करेगी, प्रॉफिट करेगी लॉस। 230 सही है तो 239,500 239,500 तुमने सारे प्लस Not possible. दो It's not possible. It's not possible. 125 जी कैसे? हाँ ये हो सकता है कैसे? 125,000 plus 36,500. So this will give you negative 83। ठीक है? So this is loss. And then you have profit 78,000. उसको इसमें से हटा देंगे तो जो आएगा फिगर वो रिजल्टेंट लॉसेस है। ये क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? आगे चलें। So the cost, by the way, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। Okay? The cost of goods sold and shipping expenses are both variable. Now it's talking. अब मुझे बता रहा है कि वो क्या क्या चीज़ है। Cost of goods sold and shipping expenses are both variable. Cost of goods sold and shipping both variable. ठीक है? ये दो वेरिएबल। आगे चलते हैं। All other costs are fixed. ठीक है? That means fixed. So these are actually traceable fixed costs. इसे तो बनाएंगे लोग, ठीक है? इसने सब कुछ गलत बनाया है हमारे हिसाब से। तो इसको फिर आगे देखते हैं क्या करता है। All other costs are fixed. Let's move on. And then it says required list any weaknesses that you see in the company segment and income statement given above. जी, इसमें मसले क्या हैं? जो common fixed cost है segments से minus एक बड़ा मसला है। So that makes the segment that makes a segment which was profitable otherwise it makes it unprofitable. तो इसका मतलब ये है कि आप profitable से unprofitable convert कर रहे हैं segment को just because you have subtracted the common fixed cost from segments which you should not do, which you cannot do in fact. आप नहीं कर सकते। ओके, एक चीज और इनकम स्टेटमेंट भी गलत बनाएंगे। क्यों? कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट होना चाहिए था और कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट को सही तरीके से फॉलो नहीं किया। और सर कॉस्ट में ट्रेसेबल कौन सा है? वेरिएबल कौन सा है? फिक्स कौन सा है? तो ये जो एक्सपेंसेस हां इसमें सर वो डिफरेंस बता दिए। ठीक है, मैंने साथ लिख दिए। ठीक जी। एनीथिंग एल्स प्लस एनीथिंग एल्स नहीं? दैट्स इट, डन। ओके, दीज आर द वीकनेसेस। इनका कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट नहीं है। अगर इन्होंने अपनी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट बनाने की कोशिश की है तो वो गलत बनाया हुआ है। उसमें पहले वेरिएबल को माइनस करना होता है, फिर ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट को माइनस करना होता है और फिर कॉमन फिक्स कॉस्ट को माइनस करना पड़ता है। कॉमन फिक्स कॉस्ट को माइनस करना पड़ता है सेगमेंट से नहीं, माइनस करना पड़ता है टोटल से। अब जब इन्होंने सेगमेंट से माइनस कर दिया तो उन्होंने सेगमेंट्स को जो प्रॉफिटेबल थे उसको, ठीक है? तो ये सारी स्टोरी आपने नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस मैं नहीं देता, लेकिन कभी-कभी इस तरह की कोई चीज दे देता हूं और कहता हूं लिस्ट कर दे। तो दो चीजें थी जो आपने लिस्ट करनी है यहाँ पे, जो दो इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, वो अगर आप दो लिस्ट कर देंगे यू विल गेट 1 मार्क। ठीक है? गॉट द आइडिया? दैट्स व्हाई आई सेड इट्स अ गुड क्वेश्चन। कांसेप्चुअली अच्छा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, कांसेप्चुअल क्वेश्चन है, आसान। लेकिन शायद आप उसको देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। Explain the basis that is apparently being used to allocate the corporate expenses to the regions. Do you agree with these allocations? Explain. जी। बेसिस जो इन्होंने इस्तेमाल किए, आपको समझ आ रही है कुछ? इन्होंने क्या इस्तेमाल किए बेसिस? जो इन्होंने बेसिस इस्तेमाल की कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस को रीजन्स को चार्ज करने में, उसकी बेसिस इन्होंने क्या इस्तेमाल की? उसकी बेसिस को यहां पे गिवन है जी। जी क्लास हो सकता है बेसिस सेल्स हो सर, बेसिस सेल्स हो, फाइंड इट आउट, कम ऑन। इसके सेल्स ज्यादा है सो
उसके वो टोटल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस भी ज्यादा है। तो चेक तो करें ना जी, चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा ना। चेक, गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई। 2 million. Give it a try. Find out what base they have used. Admin expenses on an equal charge sheet. Admin expenses on an equal charge sheet. इसकी क्या बेस हो सकती है? देखें, कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस दो किस्म के हैं। एडवर्टाइजिंग, जो कह रहे जनरल एडवर्टाइजिंग, सेकंड है जनरल एडमिन एक्सपेंस। एक उन्होंने सेम चार्ज किया हुआ है और एक को किसी एलोकेशन बेस पे किया हुआ है। सर एडमिन उन्होंने कहा है कि वो साइज सेम है। साइज सेम है, ठीक है। एडमिन का देखिए यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि द सेम साइज, ईच ऑफ दीस रीजंस इज अबाउट द सेम साइज। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव सबको कर रहा है और सब सेम साइज है, सबको इक्वल कर दो, ठीक, ओके। इसका तो बेस समझ आ गया। अब आपने ये बताना है कि ये बेस गलत क्यों है, एक चीज, और फिर पहले वो दूसरे का भी बेस फाइंड आउट करें और फिर मुझे बताएं वो गलत क्यों जी। इस दूसरे का बेस, इसका बेस क्या है? एडवर्टाइजिंग जर्नल जी। कौन क्लास? एडवर्टाइजिंग जर्नल, व्हाट्स द बेस फॉर दैट? व्हाट इज द बेस फॉर दैट? हैव यू कम अप विद अ रीजन कि उन्होंने क्या किया? कुछ समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा? ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सेल्स। 2 मिलियन की टोटल सेल्स है, ठीक है, and the part of west is 450,000 out of 2 million. So what is the percentage? Sir, percent of sales पे किया है। Percent of sales. हाँ, तो वही कर लेना। 450,000 डिवाइड बाय 2 मिलियन कितना परसेंट बनता है? 22.5 और इसी का भी 22.5 बनता है। 22.5% बनता है। ओके, 22.5% ये बन रहा है। This one 22.5% of total sales of 2 million. अब इसको सर टोटल करें 18 plus 32 plus 30। ये डिवाइड बाय 80,000 तो इसका ये 80,000 आ रहा है। इस 80,000 का जरा 22.5% ले लिया है। यही है सर सेल्स का इन्होंने सर 4% लिया सकता, तो 450 का 4% 18,000 आ रहा है। हाँ, 800,000 का भी 4% 32 आ रहा है और 750 का भी 4% आ रहा है। परसेंट ऑफ सेल्स। एडवर्टाइजिंग में 4% लिया हमने सेल्स का। ओके, अच्छा 40% 40%। 40%। यही आ रहा है सबका, ये सबको समझ आई सेलिब्रेशन बेस की क्लास? इस सेलिब्रेशन बेस की समझ आ गई? ये क्या एलोकेशन बेस है? दोबारा बोलिए सर 4% इन्होंने सेल्स का लिया हुआ है, एडवर्टाइजिंग का जो कॉस्ट आया उन्होंने सेल्स का 4% लिया हुआ है। एडवर्टाइजिंग की जो कॉस्ट है वो सेल्स का 4% है। 2 मिलियन का 4% कितना आता है? 80,000। 1 मिलियन का 40,000 आ गया, 2 मिलियन का 80,000 आ गया, 80,000। इसी तरह आप देखें जरा 450,000 का 4% 18,000। एक आ गया 18, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसका उन्होंने परसेंटेज लिया हुआ है सेल्स का, सेल्स की परसेंटेज की बेसिस पे लिया हुआ है, ठीक। 22.5% ऑफ 80,000 कितना आ रहा है? 18,000, ठीक है। तो उन्होंने ये बेस इस्तेमाल की। अब मुझे ये बताएं, उसने पहला क्वेश्चन ये पूछा कि इन्होंने बेस क्या यूज की, फिर सेकंड क्वेश्चन वो आपसे ये पूछ रहा है कि ये क्यों गलत है। तो करते क्वेश्चन अगेन, इट सेज explain the basis that is apparently being used to allocate the corporate expenses to the regions. Do you agree with these allocations? Explain. Ji, do you agree with these allocations? Do you agree or not? Yes or no? No? Okay. Why not? सर सेल्स का नहीं करना चाहिए। तो फिर किसका करना चाहिए? मैंने आपकी बात मान ली, सेल्स का नहीं करना चाहिए, किसका करना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन का तो सही है ना। किसका करना चाहिए? पहले ये एक मसला हल करें ना, एडमिनिस्ट्रेटिव को फिलहाल छोड़ें फिलहाल, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट एडवर्टाइजिंग एंड देन वी विल मूव ऑन टू जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। जी, क्यों नहीं करना चाहिए? जनरल ने किया, ये क्यों नहीं करना चाहिए? रीजन कम ऑन क्विकली क्लास, ज्यादा टाइम लेना चाहते हैं सब एक सेगमेंट का अलग-अलग मतलब एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस में टोटल सेल्स पे ही सब कुछ है। किसी का सर ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, तो तीनों रीजन्स को नहीं सब जगह। Wars. Advertising is a general expense. Advertising को ये एक रीजन नहीं कर रहा, एडवर्टाइजिंग कंपनी कर रही है पूरी, ठीक है। एडवर्टाइजिंग कंपनी कर रही है, इट्स अ फिक्स्ड कॉस्ट एंड इट्स अ नॉन ट्रेसेबल फिक्स्ड कॉस्ट, इट्स अ कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट। अब अगर ये कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट है तो कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट को योर फर्स्ट आंसर शुड बी कि कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट कैन नॉट बी एलोकेटेड टू रीजन्स और सेगमेंट्स, फुल स्टॉप। दिस इज द फर्स्ट थिंग,
ये कभी भी एलोकेट नहीं हो सकते। क्यों एलोकेट नहीं हो सकते? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एलोकेट वो चीज होगी जो कि अगर रीजन को मैं हटाऊं तो वो एक्सपेंस खत्म हो जाए। दिस इज द डेफिनेशन। Yes. इस डेफिनेशन के मुताबिक इफ आई रिमूव अ रीजन दिस जनरल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस विल नॉट डिक्रीज और वैनिश। तो इस वजह से इसकी एलोकेशन पॉसिबल ही नहीं है। और सेल्स की बेस पर तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि सेल्स किसी की ज्यादा है और आप उसको एक्सपेंस ज्यादा एलोकेट कर दें। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, इट्स नॉट अ गुड एलोकेशन बेस। क्योंकि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई एक रीजन सेल्स ज्यादा दे रहा है ना आपको, आपकी कंपनी को, तो इसका मतलब डूइंग समथिंग गुड, अच्छा कर रहा है ना आपके लिए, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको ज्यादा कॉस्ट दे दें। इट्स नॉट लॉजिकल। कॉस्ट जो ज्यादा इनकर करेगा उसको ज्यादा कॉस्ट दे। लेकिन ये तो कोई कॉस्ट इनकर नहीं करे, तो कंपनी है वो सब प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करती है। एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच वो है, एक ब्रांच वो है। एक ब्रांच में ज्यादा सेल कर लेती है, एक ब्रांच कम सेल करती है, एक दूसरी ब्रांच कुछ और सेल करती है। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि उस एडवर्टाइजिंग कॉस्ट का ज्यादा पोर्शन उसको दे दूं जिसने सेल ज्यादा की। सो इट्स एक्चुअली रॉन्ग। ठीक है, यू नीड टू एक्सप्लेन दिस ओवर हियर। Now prepare a new contribution format, segmented income statement for May, show a total column as well as data for each region. अब आपने इसको दोबारा से बनाना है और segmented wise बनाना है। सारा क्वेश्चन आपको समझा चुका हूँ। इसमें देखते हैं इसमें कुछ और चीज है कि नहीं है। Okay. In addition, for the company as a whole and for each sales region, show each item on segmented income statement as a percent of sales. ये भी बताना है, ठीक है? Percent of sales बनाना है। Fourth, analyze the statement that we prepared in part 3 above. The statement, what insights do these statements reveal that you would bring to management's attention? अगर फिर इसमें कोई मसला है, फिर आप मैनेजमेंट को बताएं कि ये मसला है, और फिर मैनेजमेंट देखेगा कि हाँ हम नुकसान में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि देखिए ओवरऑल कंपनी नुकसान में। ठीक है, ये सारा काम आपने करना है। I'm giving you 5 minutes में हो जाएगा। I'm giving you 5 minutes. इसको पॉज करें। I'm giving you 5 minutes. You need to do that in 5 minutes and give me the answer. Okay. Now let's start class. Let's start and kindly do it quickly. Okay. काफी टाइम इसमें लगा चुके। So now what do you need to do first? Sales minus variable cost. And there are only how many variable costs? 2 variable costs. So that means sales minus variable cost. Variable cost over here is 70,100 and 162,900. That makes a total of 108 180,000. 450,000 minus 180,000 will give you a second margin of 270,000. ठीक है? Okay. So now contribution margin of 270,000 for West region. For Central region, your regional expenses variable costs are 280 plus 32 312,000. So that means a contribution margin of 488,000. For each 376,500 plus 28,500. So your variable costs are 405,000. A contribution margin of 345,000. Now let's move on to fixed costs. Now your fixed cost. Okay. Fixed cost. Let's write fixed cost over here. So now your fixed costs are advertising, salary, utility, and depreciation. Add them up. 238,500. 238,500. That means a segment margin of segment margin 31,500. Yes. Okay, so that means segment western segment, the region is profitable. Let's move on to 488,000 minus 200, 88, 12, and then 23. 328,000. So that means a contribution margin of segment margin of 160,000 segment margin. That means central region is also profitable. Okay. Third one, 210 plus 135 plus 15 plus 30.
390,000 is your fixed cost. So now you have a loss of 45,000. So this is the only region which is giving you a segment margin loss. Okay. Let's move on. Let's talk about traceable fixed cost now. Traceable fixed cost यहाँ से minus नहीं है. Traceable fixed cost यहाँ से minus है. Sorry, common fixed cost. Okay. So your segment margin, total segment margin कितना बना? 31,500 plus 160,000 minus 45,000. तो total margin कितना है? 146,500. Okay. ये भी हो गया. अब fixed cost, common fixed cost is 80,000 and 150,000. 150 plus 80 equals 230. 146,500 minus 230,000. 83.5. हो गया? अब मुझे बताएं. What would you want to tell management? ये सबको देखे बताएं मैनेजमेंट को आप क्या कहें? East region. अब पता चल जाए. East region is negative. ईस्ट रीजन नेगेटिव आ रहा है तो खत्म कर दें, बंद कर दें, इसको बंद कर दें. कुछ तो बताएं इसको. कॉमन फिक्स कॉस्ट कंट्रोल देखें इसको हमने बताना है. What insights do these statements reveal that you would bring to management's attention? Sir, traceable fixed cost East region का बहुत ज़्यादा. सर इसको बंद कर देंगे ईस्ट वाले को. ईस्ट वाले को बंद कर दें. एक आइडिया ये हो सकता है कि ईस्ट को बंद करें, ठीक है. लेकिन ईस्ट को बंद करने से पहले ये चेक करना है कि ईस्ट कुछ कमा के दे रहा है कि नहीं कमा रहा है, ठीक है. अब ईस्ट का ओवरऑल लॉस कर रहे हैं. ईस्ट का मेरे पास सेगमेंट मार्जिन आ रहा है नेगेटिव. सेल्स क्यों आ जा रहा है? Sir, sales बहुत almost. सेल्स ज्यादा है 70,000. सर सेल बहुत ज्यादा एक मिनट. सेल्स देखें सेल्स ज्यादा है. The first thing is sales minus variable cost. Variable cost was 5,000. ठीक. आपसे कहा था कि एक और काम करें. क्वेश्चन ने भी कहा था और मैंने भी कहा था. परसेंटेज ऑफ सेल्स वो किसी ने फाइंड आउट किया? नहीं ना. वो फाइंड आउट करे वो मुझे बताएगा कि क्या वाकई इसका परसेंटेज ऑफ सेल्स ज्यादा है. अगर ज्यादा है तो फिर इसमें मसला है, और अगर ज्यादा नहीं है तो फिर इस रीजन का ऐसा मसला नहीं. सर जब हम इस सेगमेंट को हटाते हैं तो हम No. Don't go to that extent now. First, let's analyze it. Okay. सर हम उसके एक कंपोनेंट को क्यों देखते हैं? अगर हम एक सेगमेंट हटाना है तो हम जस्ट उसका जो नेट प्रॉफिट है नेट लॉस है उसको हटा के फिर देख लेते हैं. आपकी बात सही है. मैं इसका नेट प्रॉफिट नेट लॉस हटा के चेक कर सकता हूं. लेकिन क्या पता मैंने अभी सॉल्व नहीं किया. क्या पता इसका परसेंटेज ऑफ सेल्स जो इसका ये जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स चलो सीएम रेशियो बन जाएगा ना. ये यू रिमेंबर दिस सीएम रेशियो. सीएम रेशियो अगर इसका ज्यादा हुआ तो फिर तो दैट्स अ गुड रीजन है ना. इसका मतलब प्रॉब्लम किधर है? देयर वेयर इज द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है. ट्रेसेबल फिक्स्ड कॉस्ट उसमें मसला. अभी देखते हैं ना. लेट्स फाइंड आउट. कभी नेट प्रॉफिट नहीं कभी भी नहीं. कभी भी नेवर. Sir, इसका 50% होगा. इसका सीएम मार्जिन 50% है. इन दोनों को भी जरा चेक करें. इन दोनों को क्या नहीं 50% क्यों आ रहा है? 405 is not 50% or 750. 46%. 46%. 46%. जरा इन दोनों को भी चेक करें. So, एक सेंट्रल का 61 और वेस्ट का 61. Now we are talking 46%. तो बाकी रीजन से इसका कम है सीएम रेशियो. ठीक है. प्रॉब्लम इसके साथ है. जरा फिक्स कॉस्ट चेक. फिक्स कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स. ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स किसकी ज्यादा है किसकी कम है? लेट्स फाइंड आउट. ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स. सर इसका 52%. किसका? ईस्ट का 52%. सेंट्रल का 41%. वेस्ट 53%. So there is not much problem, I would say, with the fixed costs.
ट्रेसेबल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है? इतना बड़ा मसला नहीं है वो, तो इसका 53% उससे भी ज्यादा है। सो बेसिकली द प्रॉब्लम इज विद द सेगमेंट, कि सेगमेंट का जो है वो जो ये इसका क्या था 405 था, ये इसकी क्या चीज थी? वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट थी, और इसका सीएम जो आपके पास निकल रहा था 345,000, ये सीएम है। यस इसका सीएम कितना परसेंट? जाहिर सी बात है सीएम भी ज्यादा होगा, 40। ये आपने मुझे सीएम का रेशो बताया या आपने मुझे CM सीएम का रेशो? अच्छा मैंने फिक्स का उसके साथ लिख दिया, ओके, ये सीएम का रेशो, सो दैट मींस इट्स क्लियर नाउ। इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, लेकिन उसका जो रेशो है दैट इज गुड, सो इट विल हैव टू वर्क ऑन दिस, इसको इस चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब जरा देखते हैं उसके अंदर कितनी चीजें, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर मेरे पास दो चीजें, कौन कौन सी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड शिपिंग। सो लेट्स गो टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर वो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? हां ऊपर सबसे ऊपर दे, Direct Corporation is a wholesale distributor of office products. Office products हम बेचते हैं, ठीक है? Chair, table, whatever, cabinets, cupboards. It purchases office products from manufacturers and distributes them in the west, central, and east regions. Manufacturers are directly उठाए, ठीक है? यानी जो आपका CGS है, basically you are not a manufacturer. आप manufacturer हैं? नहीं, आप manufacturer से चीजें लेते हैं और फिर आप बेचते हैं, ओके? इसका CGS हाई है, दैट्स व्हाई इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन लो है, यही है ना? 100 इज सेल्स, इसका CGS वुड बी 54 सॉरी 54 होगा। बाकियों का CGS जो है, CGS का परसेंटेज या परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, अगर आप CGS का अलग परसेंटेज फाइंड आउट कर लेते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि सब फाइंड आउट करें ताकि अच्छा इंसाइट कर सकें, अच्छा इंसाइट। अगर आप CGS का परसेंटेज फाइंड आउट करें टू सेल्स, फाइंड इट आउट क्विकली, गिव मी दैट फिगर। सो वेरिएबल के टोटल कितना है? वेरिएबल के टोटल का करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि बिकॉज़ इफ दिस इज 46, द अदर वन वुड बी 54, इफ दिस इज 61, द अदर वन वुड बी 39। सो उसी से भी हमें पता नहीं चलता, पता चल सकता है, लेकिन उसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, हमें अरे इसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं। स्पेसिफिक मैं जानना चाह रहा हूं कि द प्रॉब्लम इज विद द CGS और विद शिपिंग, आई वांट टू फाइंड आउट CGS से 35 ये कितना है? नहीं सेंट्रल का सेंट्रल का 35, इसका 50.2, इसका 36.2, इसका 36.2 और दूसरे का 50.3। ओके, जरा शिपिंग को भी फाइंड आउट करना है ताकि बस कंफर्म हो जाए कि द प्रॉब्लम इज विद CGS। मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूं कि मसला किस चीज के अंदर, ठीक है? और जितना मैंने अब तक देखा है मुझे लग रहा है मसला CGS के अंदर है, बट आई वांट टू कंफर्म इट, सो आई वांट टू सी शिपिंग एक्सपेंस को मसला तो नहीं कर रहा। 3.8 ईस्ट, सेंट्रल का 4%, 4, इसका भी 8.8 इसका 3.8, so that means confirmed the problem is with CGS confirmed। ये देखिए ये इनसाइट्स जो है ना, ये एनालिस्ट करते हैं, ये आप एज अकाउंटेंट्स, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स कर रहे हो, ठीक है? लेकिन उसके लिए जरूरी है कि यू नीड टू गेट इनटू द सिचुएशन। ये कंसल्टेंसी है जो आपने प्रोवाइड करनी है, लेकिन वो तभी पॉसिबल है अगर आपको ये चीजें आती हैं और आप इस चीजों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, सही? और a few months back एक कंसल्टेंसी आई थी मेरे पास, बहुत अरसे बाद मैंने कंसल्टेंसी दोबारा शुरू की तो आई, लेकिन माय स्टूडेंट्स वर एंगेज्ड इन देयर एग्जाम्स, तो मैं उनको बीच में इन्वॉल्व नहीं कर सका। इस बार कोई आएगी सो आई वुड डेफिनेटली इन्वॉल्व यू सो दैट यू नो हाउ टू वर्क, ठीक है? रियल लाइफ सिचुएशन जहाँ पे आप जाएं एक कंपनी के अंदर, देखें, उनसे डेटा उठाएं, उनसे कहें भाई मुझे ये डेटा दो, ये डेटा दो, ये डेटा दो। मतलब डेटा बेस नॉट अवेलेबल, यहाँ पे तो क्वेश्चन में डेटा अवेलेबल होता है ना, आपको पता है कि इसके अंदर कुछ है, वहाँ पे तो कोई डेटा नहीं है। वॉक इनटू अ कंपनी, यू फाइंड आउट, वो कहता है यार सेल्स है, बस सेल्स नहीं, सॉरी लॉस कर रहा हूँ यार, नहीं पता क्यों कर रहा हूँ। यू नीड टू फाइंड आउट क्यों कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर पेइंग, ठीक है? तो फिर आप जाकर एक चीज इस तरह लेंगे, एक चीज को चेक करेंगे, परसेंटेजेस चेक करेंगे, जितनी चीजें आपने पढ़ी हुई है, रेशियोज आपने पढ़ी हुई है, जो चीजें आपने पढ़ी हुई है सबको उसके ऊपर एनालाइज करेंगे। उसके बाद यू विल फाइंड आउट द रीजन एंड देन यू विल टेल देम द रीजन एंड देन दे विल पे यू फॉर दैट, ठीक? सो इट्स ऑल फिगर्स, इजी। एक्सेल के अंदर ये काम इट्स पीस ऑफ केक। अब अगर ये काम मैं यहाँ पे करूँ तो मुझे टाइम लगा 20 मिनट,
ठीक है, अगर ये काम एक्सेल के अंदर करता तो मैं एक शीट बनाता, उसके अंदर ये फिगर्स पुट करता, फॉर्मूले लगाता, फिगर्स आ जाती, उसके ऊपर मैं लिख देता कि जिस फिगर जो है वो ज्यादा है उसको अलग कर दो, वो अलग करके मुझे बताता है, एंड आई वुड फाइंड आउट दिस यस इट्स सीजीएस, बहुत आराम से, ठीक है। एंड देन इफ आई हैव टू डिग इनटू सीजीएस अगेन, अब सीजीएस को देखेंगे सीजीएस में क्या मसला है, तो फिर वो फर्दर भी कर सकता हूं कि सीजीएस को फर्दर चेक करूं। लेकिन सिंस इट्स अ मैन्युफैक्चर, इट्स नॉट अ मैन्युफैक्चर, इट्स अ मर्चेंडाइजर, तो मर्चेंडाइजर ने तो वहां से मार्कर लिया और मार्कर बेचा, तो इसने जो मार्कर जिससे खरीदा है वहां पे इसको is high, whereas इनका देखिए 35%, 36.2%, यानी अगर 100 रुपए का ये कोई चीज बेचते हैं तो उसकी कॉस्ट इनको 35%, 35 रुपीस पड़ रही है, लेकिन इसकी कॉस्ट पड़ रही है 50 रुपीस, ऑल्दो इट्स मेकिंग गुड सेल्स, नॉट बैड, सेकंड नंबर पे ये सेल्स करके दे रहा है आपको, ठीक है। तो अभी किसी ने कहा ना नहीं ये सेल्स अच्छी कर रहा है, इसको कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, so that was a valid one कि ये सेल्स अच्छी कर रहा है, लेकिन देखिए ये सेल्स तो अच्छी कर रहा है लेकिन इसकी कॉस्ट कितनी है, क्योंकि बिकॉज़ इट्स मेकिंग लॉसेस, ये लॉसेस कर रहा है, क्यों लॉसेस कर रहा है, सो वी फाउंड इट आउट इट्स बिकॉज़ ऑफ योर सीजीएस, सो यू नीड टू लुक एट योर सप्लायर्स, ठीक है। तो आप मैनेजमेंट को बता सकते हैं कि यहाँ पर मसला है, इसको चेक करें। मैंने बाकी चीजें अब तक चेक नहीं की, हो सकता है इधर भी कोई मसले हो, लेकिन हमने अब तक चेक नहीं किया, सो दिस इज आई थिंक दिस वुड बी मेन रीजन। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाह रहा, वी हैव ऑलरेडी taken 1 hour, डन, खत्म, क्वेश्चंस खत्म, ओके, इसको पॉज करेंगे, we'll take a 2 minutes break and then we will start off with today's work, right? Okay. So let's start with today's work. Now today we need to do some basic ratios and how these ratios, how sales or expenses would affect them. और फिर उसके बाद we'll talk about transfers. That is the main portion. ये आप लोग पहले कर चुके हैं तो इस वजह से I don't think it would be a big deal for you people. Ratios you have already done. You are already familiar with the concept of ROI. ROI का concept तो सबको याद है ना? याद है? हाँ, याद है? So we will rush through it. जल्दी से करें. Okay. So let's talk about ROI. Now we know that ROI is return on investment. So whatever you have invested, उसके ऊपर आपको कितना पैसे आ रहे हैं, ठीक है, कितना रिटर्न आ रहा है, okay. So that means whatever you have invested in your assets, ठीक है, assets में आप लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, अब जब भी पैसे आप you want to invest in a business or in some idea, in some venture, so you invest in assets and then those assets would get you some income, okay. So assets would get you some income, यही होता है ना. So basically ROI, return on investment, is your income, which in this case is net operating income, divided by your assets, और वो assets जो आपको पैसे कमा के दे रहे होते हैं, those are called as your operating assets, जो normal operations में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, they are being used, और फिर वो इस्तेमाल होकर आपको कोई पैसे कमा के दे रहे हैं. So it's net operating income divided by average operating assets. फिर हम कहते हैं operating assets keep on changing throughout the year. कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी आप कोई चीज़ खरीदेंगे, कभी आप कोई चीज़ बेच देंगे या आप उसको रिप्लेस करेंगे. So a better figure would be to go for average operating assets. Now अब ये average, पहले operating assets कौन से हैं और फिर average कौन से आप लेंगे. Average would mean कि either you go for the opening plus the closing, add them up, divide by 2, आप इस तरीके से करते हैं. और ऑपरेटिंग एसेट्स में आप क्या क्या लेंगे, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, ये रोज इस्तेमाल हो रहे हैं आपके ऑपरेशंस के अंदर. व्हाटएवर योर ऑपरेशंस, जो भी आप करते हैं, आप जो भी बेचते हैं, जो भी खरीदते हैं, यू मैन्युफैक्चर समथिंग, व्हाटएवर यू डू. सो कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड अदर प्रोडक्टिव एसेट्स. तो ये सारे एसेट्स आपको हेल्प कर रहे होते हैं, हेल्प आउट कर रहे होते हैं वो पैसे कमाने में, इनकम कमाने में. और वो इनकम कौन सी है, दैट इनकम इज नेट ऑपरेटिंग इनकम, which means the income before interest and taxes, EBIT. सही है. So in other words, it is EBIT divided by average operating assets. Clear हो गया formula? Formula is clear, ROI is clear. Okay, so let's move on. अगर ROI ये है, ठीक, so most companies use the net book value of depreciable assets to calculate average operating assets. अब एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स के लिए हम लोगों ने कहा कि आप लोगों को कुछ फिक्स एसेट्स भी बीच में इंक्लूड करने हैं, क्योंकि वो भी आर वर्किंग टू गेट यू द इनकम विच यू आर गेटिंग. तो उसके लिए क्या लेंगे, उसके लिए आप उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं, उसकी बुक वैल्यू लेंगे.
नेट बुक वैल्यू किस तरह कैलकुलेट होती है? व्हेन यू सबट्रैक्ट द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फ्रॉम द हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये बात भी क्लियर होगी सबको? ये भी क्लियर है? आगे जाएं इससे, ठीक है? ये सारी बातें आप पहले पढ़ चुके हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा तेज हूं। ओके, सो नाउ व्हाट इज एक्चुअली दिस आरओआई? दिस आरओआई इज नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स। नाउ ये बना कैसे है? अब इसको जरा गौर से देखिएगा। ये जो आरओआई है, ये वो कह रहा है कि मार्जिन भी है और आपका टर्नओवर। अगर मार्जिन और टर्नओवर का प्रोडक्ट मैं फाइंड आउट करूं, ठीक है? मार्जिन क्या होता है कि आप कितने पैसे कमाते हैं। आप कितने पैसे कमाते हैं किस चीज़ से? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, आप कितने पैसे कमाते हैं अपनी सेल्स से। सेल्स आप करते हैं, 100 रुपये का मार्केट बेचते हैं, और हमने थोड़ी देर पहले देखा कि वो जो ईस्टर्न रीजन था वो 50 रुपये इसके ऊपर कॉस्ट कर रहा था, सही? तो अगर आप 50 रुपये कॉस्ट करें तो दैट मीन्स आप 50 रुपये इससे कमा रहे हैं। ओके, सो नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द मार्जिन, द रेशो। आपको वो मार्जिन फाइंड आउट करना पड़ेगा, विच विल बी कैलकुलेटेड बाय हैविंग नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय सेल्स। ठीक है, वो इस तरह आएगा। ये बात याद है? ये बात याद है? इस मार्जिन का शायद आपने नाम कुछ और पढ़ा हो। इस मार्जिन का मोस्ट प्रोबेबली आपने नाम पढ़ा होगा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या नेट प्रॉफिट मार्जिन। इन दिस केस इट इज नेट प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है? नेट ऑपरेटिंग इनकम, नेट प्रॉफिट मार्जिन, याद आ गया? सो दिस इज दैट नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय सेल्स, कि जितनी सेल्स की उस पर कितने पैसे मैंने कमाए। ओके, ये हो गया। फिर मैं कहता हूं मैं कुछ जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं अपने एसेट्स, उनसे भी मैं पैसे कमाता हूं ना। सो माई एसेट्स आर एक्चुअली गिविंग मी सम रिटर्न, ठीक है? वो भी मुझे कुछ रिटर्न दे रहे हैं, और वो पैसे जब मैं कमाता हूं तो मैं सेल करता हूं, ठीक है? मैं एसेट्स इस्तेमाल करता हूं कुछ चीजें बनाने में, या मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, या ऑलरेडी खरीद रहा हूं मर्चेंडाइजर, और फिर उनको बेचता हूं और फिर पैसे कमाता हूं। सो इट्स एक्चुअली यू आर अर्निंग समथिंग यूजिंग योर एसेट्स। कौन से एसेट्स? वंस अगेन एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स। इन एसेट्स को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक? इनको इस्तेमाल कर रहा हूं और इसके थ्रू मैं सेल्स कर रहा हूं। ओके, सो दिस इज एक्चुअली योर टर्नओवर ऑफ योर एसेट्स। ये आपका एसेट का टर्नओवर है कि एसेट्स कितने आपको पैसे कमा के दे रहे हैं। ओके, ये भी हो गया। सेल्स का टर्नओवर आपका, कि सेल्स कितना टर्नओवर है यूजिंग योर एवरेज एसेट्स, एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स। अब गौर से इसको देखें। अब वो ये कह रहा है कि ये बेसिकली आरओआई है। ये इसलिए आरओआई है क्योंकि इट कम्स टू दी सेम डेफिनेशन ऑफ आरओआई विच वी स्टार्टेड अर्लियर। सही है? समझ आ गई? क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? क्लियर? सो दैट मीन्स आरओआई जो अब तक हम देख रहे थे, इट वॉज सिंपली आरओआई वॉज सिंपली माई ईबीआईटी divided by average operating assets, but now we see it is actually the product of my margin and turnover. अब ये इन दो चीज़ों का प्रोडक्ट है। Got the idea? मार्जिन हमारे पास नेट हो गया, ग्रॉस हो गया, एंड ये फिलहाल यहाँ पर हम नेट ही इस्तेमाल करें। अगर हम ग्रॉस करेंगे सो देन इट्स सपोज टू बी अ ग्रॉस प्रॉफिट ना, इंस्टेड ऑफ नेट ऑपरेटिंग इनकम इट वुड बी ग्रॉस इनकम, ठीक है? और ग्रॉस इनकम से बहुत सारे एक्सपेंसेस माइनस होने रह जाते हैं, सो दैट्स व्हाई इट माइट नॉट बी अ वेरी गुड फिगर टू एनालाइज। जी, क्लियर सो फार? जाए आगे? ओके, सो लेट्स मूव ऑन। ओके, वी आर डन विद दिस वन। Okay, so there are three ways to increase ROI. Now, you know कि it would be good to increase this ROI. ROI increase होता तो अच्छी बात है ना? ROI रिटर्न और इन्वेस्टमेंट आपका ज़्यादा हो तो अच्छा है। आपको मैंने किस्सा सुनाया था, my son when he talked about ROI, he is 6 years old और he talked about ROI, और उसने कहा कि इस बिज़नेस का ROI अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा तुम्हें क्या पता कि ROI क्या है? एंड ही सेड कि ROI इतनी कॉस्ट में लगा रहा हूँ, इतने पैसे लगा के इतनी इनकम कमाई जा रही है, तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है? और बेसिकली ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज यंगर सिस्टर्स बिजनेस। जो मेरी छोटी बेटी है उसने जो बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ था उसके बारे में बात कर रहा था। सो इट वॉज वेरी आई वॉज ओवर हियरिंग देम। मैं काम कर रहा था एंड मैं सुन रहा था वो लोग क्या बातें कर रहे हैं आपस में।
एंड देन माई सन सेड डैडी इसका बिजनेस अच्छा नहीं है. मैंने कहा क्यों अच्छा नहीं है? शी इज़ अर्निंग समथिंग एट दिस एज, सो इट्स गुड, इनकरेज हर, उसको करना चाहिए. शी इज़ हार्डली 10 years old, हाँ 9 years old, 9 years or 10 years old. ठीक है, तो मैंने कहा उसको करने दें. कहते नहीं, ये जो चीज़ें, ये जो प्रोडक्ट बेच रही है और इसके ऊपर जो इसने कॉस्ट लगाई हुई है वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इसकी. ठीक है, मैंने कहा क्या कॉस्ट है? उसने कहा ये इतने टाइम में ये एक प्रोडक्ट बनाती है और इसने इसके लिए पूरी किट ली है. शी इज़ एक्चुअली मेकिंग ब्रेसलेट्स एंड ईयरिंग्स एंड उस तरह की स्टफ. उसके लिए उसने एक किट ली हुई है, उसे बनाती है एंड देन शी सेल्स दैट इन हर स्कूल. ठीक है, क्लास फेलोज. और पिछले दिनों वो बहुत खफा थी एंड आई सेड व्हाई. तो उसने कहा कि मेरा बिजनेस तो गया. मैंने कहा व्हाई? एंड शी सेड एक्चुअली शी वाज़न्ट टॉकिंग टू मी, शी वाज टॉकिंग टू हर मदर. और फिर इस तरह मैंने सुना कि वो क्या कह रही है. सो शी वाज सेइंग कि जो मेरी सबसे अच्छी कस्टमर थी, सबसे अच्छी कस्टमर जो सबसे ज़्यादा सेल्स जहाँ से मुझे आती थी, शी हैज़ बॉट हर ओन किट, सो ना शी वोंट बी ऑर्डरिंग मी. ठीक है, वो मुझे ऑर्डर नहीं करेगी. तो मैंने कहा खैर है, दैट दिस इज़ कॉम्पिटिशन. ठीक है, एंड यू शुड इनकरेज दैट, और तुम इससे अच्छी प्रोडक्ट बनाओ. अब इसमें कोई इनोवेशन लेकर आओ. हालांकि देखा जाए तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. आप बीड्स इकट्ठा करें, एक स्ट्रिंग के अंदर डालें और आप बेचें एज ईयरिंग्स, और कौन खरीदेगा आपसे? बट बच्चे हैं, ठीक है, दे डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. बट देन इफ़ यू वांट टू रियली want kids to have some entrepreneurship skills, so you need to appreciate them. आप उन्हें अप्रिशिएट करेंगे, हाँ लेट्स डू इट, करें इस तरह ताकि वो सीखें. तो उसने कहा कि ये अच्छा आइडिया नहीं है. अब ये अच्छा आइडिया नहीं है तो ROI को ज़्यादा कैसे करें? अब ROI को आपने ज़्यादा करना है, यू नीड टू इंक्रीज योर ROI, क्योंकि जितने पैसे मैं लगा रहा हूँ, जितने पैसे मुझे आ रहे हैं वो उसके मुताबिक नहीं है. सो यू कैन इंक्रीज योर ROI बाय डूइंग 3 things, and that you can very easily find out by just looking at this. इस फॉर्मूले को देखने से आपको समझ आ जाएगी कि उसमें क्या क्या चीज़ें. देखें, दिस इज योर EBID एंड दिस इज योर एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स. अब ये EBID एक्चुअली कम्स फ्रॉम सेल्स. अब आ जाए इस पे आ जाए. नाउ दिस इज एक्चुअली दिस फॉर्मूला बीइंग स्लाइस्ड. इसको मैंने स्लाइस करके इसको 2 चीज़ें कर दी हैं. इसका मतलब ये कि अगर ये सेल्स ज़्यादा होगी, ठीक है, सो इट वुड गिव मी समथिंग गुड. ये मुझे कोई अच्छी चीज़ देगा क्योंकि उससे मेरा EBIT ज़्यादा होता है. So when I increase sales, my ROI would increase. But at the same time, when I increase sales, my expenses would increase. लेकिन अगर मैं सेल ज़्यादा करूँ 100 रुपये का और मेरा एक्सपेंस ज़्यादा हो जाए let's say 101 रुपीज़ का, 1 or 2 रुपीज़ का, so then it does not make any sense. So that means you need to increase sales, at the same time you need to reduce your expense. आपको expenses कम करने हैं. ठीक, ये भी हो गया. अब आ जाए इस पार्ट पे. अब इस पार्ट पे आ जाए. ठीक है, अगर ये फिगर ज़्यादा होती जाए, सो व्हाट विल हैपन टू माय ROI? इट विल डिक्रीज. ठीक है, सो आई नीड टू रिड्यूस दिस वन. लेकिन जरा सोचें, इफ आई रिड्यूस माय एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स, तो वुड ROI इंक्रीज? मैथमेटिकली ना देखें, थोड़ी देर के लिए इसे वापस आएं एंड लेट्स टॉक अबाउट कैश, लेट्स टॉक अबाउट अकाउंट रिसीवेबल, लेट्स टॉक अबाउट मशीन्स. अगर मैं इसको रिड्यूस करता हूं तो मेरी सेल्स इंक्रीज होती हैं, ROI इंक्रीज होता है. सो देन व्हाट्स द पॉइंट? एफिशिएंसी. दिस इज द पॉइंट. ठीक है, मैं इसको रिड्यूस करता हूं इन द सेंस दैट आई मेक देम मोर एफिशिएंट. I make them more efficient and then my ROI would increase. So there are 3 things which I need to do: increase sales, reduce expense, reduce assets. Clear? ये सब the answer is inside this formula. कि क्या 3 काम आपने करने हैं. Remember ये theory के जो questions हैं, ये मैं आपको दरमियान में questions numericals के दरमियान में कहीं से पूछूंगा कि what has happened in this question. जिस तरह भी पिछले question में आपने देखा था कि वो आपसे पूछ रहा था कि क्या करना चाहिए, तो मैं इस तरह पूछूंगा. और hint के लिए आपको if there are 2 points, so I would say point 1, point 2. अगर 3 points, so I would say point 1 blank, point 2 blank, point 3 blank. So it will give you an idea कि आपने 3 चीज़ें लिखनी है, 2 लिखनी है, 1 लिखनी है. ठीक है, और जितना आप ज़्यादा चीज़ें लिखेंगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे. बट यू नीड टू बी शॉर्ट टू द पॉइंट. ऐसे ना हो मुझे स्टोरी सुनाने शुरू कर दें एग्जाम में. ठीक है, शॉर्ट टू द पॉइंट. यू नो हाउ एग्जाम्स आर, योर एग्जाम्स आर लेंथी, सो यू नीड टू बी शॉर्ट, क्रिस्प, टू द पॉइंट. ओके, ये भी हो गया. अब आगे चलते हैं. Now let's have a look at this question. Regal company reports the following: net operating income is 30,000, average operating assets are 200,000, sales are 500,000, operating expenses are 470,000. By the way class, अगर मैं आपको एग्जाम में 2 किस्म के operating assets दे दूं, start of the year, end of the year, so what do you need to do then? Average them out.
एड दम अप, डिवाइड बाय 2। ये बात याद रखिएगा दिमाग में, ऐसे ना हो वहां पे कोई एक ओपनिंग ले रहा हो, कोई क्लोजिंग को ले रहा हो। एवरेज ऑपरेटिंग एसेट, गलती नहीं करनी। ओके, व्हाट इज रीगल कंपनीज आरओआई? सो नाउ इट्स प्रीटी सिंपल। ये फॉर्मूला था ईबीआईटी डिवाइड बाय एवरेज ऑपरेटिंग एसेट। व्हाट इज योर ईबीआईटी? 30,000 डिवाइड बाय 30,000 divided by 200,000. So the answer is 15%। यही यार, चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिए। Okay, now let's come back to this one now. Now if I do it using the margin and the asset turnover, sorry, the turnover, अगर मैं margin और turnover के through इसको find out करूँ, so my margin is net operating income divided by sales. Your net operating income is 30,000 and your sales are 500,000. Multiply by sales divided by average operating assets, which are 200,000, and this would give you once again the same 15%. Is this thing clear? Now what does this 15% mean? This is important. अब ये काम की बात है। ये जो काम मैंने किया ये तो आपके लिए कोई भी सॉफ्टवेयर करके दे देगा। आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि इसको एनालाइज करें कि ये इसका मतलब क्या है और ये आपको क्या कहाँ पे हेल्प आउट कर सकता है, या इसके थ्रू आप क्या डिसीजन ले सकते हैं। This is what you need to find out. Okay, so what does it mean? First of all, 15%. What does it mean? Assets of 200,000 will generate a return of 30,000 and 15%. 100,000 of average operating assets, investment in average operating assets would give you a return of 15,000. Yeah, let's to make it a bit simple. Why go to 1,000? परसेंट का क्या मतलब होता है? पर 100 सेंट। कितने सेंट्स होते हैं डॉलर में? 100, so cents per cent. Okay, so that means whenever you invest 100 rupees, you are getting in average operating assets, you are getting back 15 rupees as your income. ठीक है, as return या income, let's call it net operating income. ठीक है, got the idea? Got the idea? Okay, आगे चलें जी। हाँ बस almost we are all need to do at least one or two more. Now Regal's manager was able to increase sales to 600,000 while operating expenses increased to 558,000. अच्छा, अब हमारा पॉइंट क्या है? हमारा पॉइंट ये है कि हमने ये तो फाइंड आउट करना तो आसान था, वो जो तीन बातें पढ़ी ना, तीन बातें, इंक्रीज सेल्स, रिड्यूस एक्सपेंसेस, रिड्यूस एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स, ये काम अगर मैं करूं, ये तीनों काम, या इसमें से कोई एक या कोई दो या कोई तीन एक साथ, सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन माय ROI? दिस इज व्हाट आई नीड टू लर्न ओवर हियर। ये बात मैंने यहां पर सीखनी है कि अगर ये तीन चीजें चेंज करूं या सेल्स चेंज करूं तो इसका फर्क ROI पे क्या पड़ता है। लेट्स फाइंड आउट। Regal's manager was able to increase sales to 600,000. Now sales has increased to 600,000. Sales चली गई 600,000 पे, okay? While operating expenses increased to 558,000. Operating expenses increased to 558,000. Regal's net operating income increased to 42,000. Increased to 42,000. इसका क्या मतलब होता है? 30 से 42 पे चली गई। और अगर मैं कहूं कि इंक्रीज बाय, उसके साथ ऐड करेंगे, कर लेंगे एग्जाम में, गलती तो नहीं करेंगे ना। सो कीप दिस इन योर माइंड। लुक एट माई स्टेटमेंट क्लियरली कि व्हाट डज द स्टेटमेंट से एंड देन सॉल्व अकॉर्डिंगली। सो नाउ इट्स इंक्रीज टू 42,000, सो नेट ऑपरेटिंग इनकम हैज इंक्रीज्ड to 42,000. There was no change in the average operating assets of the segment. So average operating assets would remain the same, which is 200,000. ठीक, और यहाँ पे सेल्स हमने 600,000 थी। फाइंड आउट, अगर इस तरीके से आप करना चाहते हैं, सो EBIT 42 डिवाइड बाय एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स 42, सॉरी 200,000 जी, 21%, and then you can interpret this one. Clear? Clear? Okay. अच्छा,
अगर अब एक और चीज सुने फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इफ आई डू नॉट गिव यू द सेकेंड लाइन, हाउ डू यू सॉल्व इट? Sales was able to increase sales to 600,000. So your sales are 600,000, while operating expenses increased to 558,000. Operating expenses are 558,000. So 600 minus 558 would give you 42,000 of net operating income. So even if I do not give you this information, you can find it out. कर लेंगे? Confused तो नहीं होंगे एग्जाम में? ठीक है? क्या हुआ? आसान बनाऊंगा, लेकिन कम से कम इस तरह की चीजें तो रखूंगा ना जो साथ साथ बता रहा हूँ. देखिए मैं तो आपका सारा पेपर आउट कर रहा हूँ आपके लिए. कभी ऐसा एग्जामिनर देखा है जो आपको सारा पेपर बता दे पहले से? क्या करें? Okay, so RI increased from 15% to 21%, and let's call it off. Okay, so our plan for the next class, हम आज थोड़ा स्लो हो गए काफ़ी, हमने आज ये कंप्लीट करना था. सो नेक्स्ट क्लास वी नीड टू स्पीड अप, वी नीड टू फिनिश दिस ऑफ. प्लस वो जो एक एक्टिविटी टाइम, हाँ वो काम हमने करना है. ठीक है? ओके, थैंक यू क्लास. यू कैन पॉज इट, स्टॉप इट.